Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid and I am a second year medical student and welcome to another video. Or finally, I'm going to be starting kingdoms and I am starting with kingdom prokaryotes. ठीक है, kingdom prokaryotes में specifically archaea, ठीक है, और archaeobacteria. I don't really know how to pronounce it. Please let me know how it is. अच्छा, सबसे पहले let's start with some really basic stuff. Okay guys, so kingdom prokaryotes are basically discovered by, I don't know how to pronounce this person's name, it's Anthony, just a second, Anthony van Leeuwenhoek. So it seems, I really need to see the spellings here, Leeuwenhoek, okay? And this person, he or she called them animalcules, okay? Acha. Again, the actual word, the bacteria, archaeobacteria, it basically comes, so it comes from the Greek word called bacterona, which means small things. Bacteriona. You might think कि मैं ये चीज़ क्यों इतनी focus कर रहा हूँ, because in your MDCAT they can ask you stuff like this, ठीक है? Small stuff. It literally means bacteria means small stuff, and this, by the way, was a guy called Ehrenberg, ठीक है? Ehrenberg. I really hate random memorization stuff like this, but you do have to do this. Acha, so two systems of classification there. If you open your FSC books, there's a lot of detail. Ki acha, you know, they were all placed in the animal kingdom, in the plant kingdom. Then there was this John Hogg guy, Ernest Haeckel, Herdbird, Robert H. Whittaker, Lynn Marquis, Carlene Schwartz. Oh, I don't know. It's just a lot of, stuff. It's not important at all. Again, if you want to cover all bases, ठीक है, तो जाके कर लो ज़रूर. लेकिन what I want you guys to know is कि हमारे पास ना we essentially have two systems and let's just look at it this way, ठीक है? एक तो हमारे पास आता है, let's look at this A thing first. So एक classification system है 5 kingdom system. उसमें ये Monera जो लिखा हुआ है, kingdom Monerans, they're basically bacteria and archaeobacteria. There's Protista, there's Plantae, there's Fungi, there's Animalia. एक तो ये system आ गया, ठीक है? So this is the kingdom system. Kingdom system के अंदर just know कि bacteria and archaeobacteria or archaea, that's the better word for them, they're placed in the same kingdom monerans. लेकिन अगर हम दूसरे classification system पर आए, which is the 3 domain classification system, then we have a domain bacteria, we have a domain archaea, and then we have a domain eukarya, which is all eukaryotes, जिसमें हमारे पास all of these things. Like, you don't need to remember this. I'll just write it here. No need for memorization. No memorization. Okay, this is just for you guys to understand कि ये दो कौन से classification systems हैं. ठीक है, तो domain में कौन से एक मेरे पास आ जाता है अपना बैक्टीरिया का domain, एक मेरे पास आ जाता है अपना archaea का domain. ठीक है, देख लो, domain बैक्टीरिया, domain archaea. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आके ना I want you guys to understand something. So एक हमारे पास early prokaryote था, ठीक है? So we're talking millions of years ago when the earth, like when life had almost begun, ठीक है? So इनमें से ना some, like essentially from this, क्या मैं कहूँ, from this series of species, domain bacteria, eubacteria जिसे हम कहते हैं, वो अलहदा हो गया, ठीक है? From this other domain. फिर हम नीचे गए, we went all the way down, and then we had domain eukarya and we had domain archaebacteria. So you could say that this is, let me use a color that's more visible. It's not more visible. Achha. You could say that this is an older / less evolved thing. Okay? Because ये पहले हट गया था and it essentially was not able to evolve that much. So this is more evolved. ठीक है, तो हम इनको अगर मैं आपसे कहूँ कि archaea और eukarya are they more similar or bacteria and eukarya, तो they're more similar. ये दोनों ज़्यादा similar है. अभी तो मैं आपको ऊपर से पढ़ा रहा हूँ. I've written all of this down and we'll talk about this in a lot of detail. तो आपको ये याद हो जाएगा. It's important for you to know कि domain bacteria और domain archaea का common ancestor था, the most recent one, that was basically a hyperthermophile. ठीक है, hyperthermophile. Again, MDCAT में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. Hyperthermophile, and that was 2.5
3.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हमने सारी बात कर ली, अब हम इस फाइलोजेनी पे आ जाते हैं, ठीक है। दिस बेसिकली मीन्स, इट्स प्रीटी सिंपल, वी जस्ट लिटरली टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ लेट्स जस्ट गिव इट अ टर्म, एवोल्यूशनरी relatedness, okay, how related is one species or one group of organism to another, ठीक है। evolutionary relatedness, I know it's not a word, क्या कहते हैं, evolutionary relationships among various organisms या various groups of organisms, again definition कभी वो पूछते नहीं है। अच्छा, just know कि RNA हमारे पास molecular clocks होते हैं, ठीक है, and we'll talk about this more once we're talking about RNA in proper detail, but these are called molecular clocks because they're essentially really helpful for us if you want to see how, you know, if you want to predict the phylogeny between two groups of organisms, ठीक है। अच्छा, वो कैसे होता है, क्या होता है, अभी हमने इस चीज़ को नहीं करना, ठीक है। Now let's move on to, now we've done the first part, this is similar, like this is basically a general thing, the two systems of classification, ठीक है। just remember kingdom, एक जो तरीका है classification का, the first system of classification which is the kingdom in which bacteria and archaea are in the same kingdom, which is the kingdom monerans, ठीक है, the kingdom monera, ठीक है। domain के अंदर we have two domains in the domain system, that there's one domain bacteria, there's one domain archaea। just remember कि bacteria, as I was saying, domain bacteria slash domain eubacteria, it's separated earlier, ठीक है, वो ज़्यादा पहले हमारे पास निकल गया था, ठीक है, lineage से पहले, ज़्यादा पहले निकल गया था। domain archaea, it was basically separated later on, and we'll talk about this in more detail. Okay guys, अब मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ लिख दी है कि archaeobacteria is the same thing as archaea if you guys are confused, and let's just talk about these general characteristics. सबसे पहले ना हमारे पास इनमें कुछ, we call them unusual lipids, ठीक है। so they're basically stuff, we don't need to know क्या होते हैं, कैसे होते हैं, but we just have some unusual lipids, ठीक है, which allow them to survive in very extreme conditions, ठीक है। so these are then able to survive in very extreme conditions। वो क्या होती हैं वो हम अभी 2 मिनट में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, phospholipid bilayer में ना there's a change, ठीक है, there's a difference between bacteria and eukarya एंड आर्कायोबैक्टीरिया, मतलब आर्कायोबैक्टीरिया डिफरेंट होता है और बैक्टीरिया प्लस यूकरिया डिफरेंट होता है। जो बैक्टीरिया प्लस यूकरिया वाली है, इसमें क्या होता है, हमारे पास वही पुराना ग्लिसरॉल है, ठीक है, उसके साथ इसमें हमारे पास एस्टर लिंकेजेस हैं, ठीक है। वी डिड दिस इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेक्शन, तो वो आप जाके देख लो, एस्टर लिंकेजेस हैं मेरे पास, ठीक है। मेरे पास इसमें फैटी एसिड साइड चेन एक लगी हुई है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव माई, क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, प्रीटी मच ईजी चीज़ है, ग्लिसरॉल है, फॉस्फेटिडाइडिक एसिड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब आर्कायोबैक्टीरिया में डिफरेंस बताऊँ क्या होता है। आर्कायोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ना एक phytenyl, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, phytenyl साइड चेन होती है। इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड वी हैव phytenyl साइड चेन, और उसके साथ साथ हमारे पास ना यहाँ पर ईथर लिंकेजेस होती है, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, मतलब ग्लिसरॉल भी वही है, बस ग्लिसरॉल में phytenyl साइड चेन्स हैं, और ग्लिसरॉल और phytenyl साइड चेन्स दे आर बाउंड बाय ईथर लिंकेजेस। दैट्स ऑल दैट यू गाइज रियली नीड टू नो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने इनकी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है आर्कायोबैक्टीरिया की, दिस इज समथिंग दैट ओनली आर्कायोबैक्टीरिया इज एबल टू पुल ऑफ, एंड दैट इज कॉल्ड मीथेनोजेनेसिस। दैट बेसिकली मीन्स कि यू आर क्रिएटिंग मीथेन गैस, ठीक है। तो यू आर एबल टू फॉर्म मीथेन गैस, एंड जस्ट रिमेंबर दिस इज इन सम आर्काई, ठीक है, सब में नहीं होता, ये सम आर्काई में होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास बात आ गई, एंड ऑल्सो इट्स अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाउ डज इट वर्क, वी रियली डोंट केयर, लेकिन जस्ट नो कि मेथानोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सम रैंडम थिंग, इट्स अ प्रॉपर टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, अब इनका जो एक जनरल आर्कायोबैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। एंड स्पेसिफिकली व्हाट दे डू इज कि दे टेक आवर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ लेते हैं रिड्यूस्ड एलिमेंट्री सल्फर, ठीक है, रिड्यूस्ड एलिमेंट्री सल्फर, ठीक है, प्लस दे टेक, आई जस्ट राइट इट हियर, CO2, H2O, and they make food, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर
कि ये हमारे पास दे डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बैक्टीरिया की कुछ क्लासेस फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, लेकिन आर्काई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो इसको बार बार पॉज कर करके ना देखते जाओ ताकि यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया अब हमारे पास। अब हमने ना राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस में आना है। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस जस्ट मींस कि हमारे पास ना राइबोसोम्स का जो आरएनए होता है, मतलब आरएनए, उसके अंदर वी हैव अ कपल ऑफ चेंजेस इन द सीक्वेंस, ठीक है। सो स्पेसिफिकली दिस इज मेंशन्ड इन योर फेडरल की किताब। आपके 910th न्यूक्लियोटाइड पे आउट ऑफ योर 1500 बैक्टीरिया में जहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है डबल ए CUC ट्रिपल ए। तो आर्काई में हमारे पास ऑल्टरनेटिवली वी हैव ट्रिपल ए CW एंड AAA ट्रिपल ए, ठीक है। लेट मी जस्ट शेड द डिफरेंस सो दैट वी ऑल नो दिस डिफरेंस, ठीक है। इतना माइनर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट्स रिटन इन योर फेडरल की किताब, तो आई जस्ट वांटेड कि हम इस पर फोकस कर लें। ओके गाइस, सो अब हम लोग अगले पोर्शन पे चलते हैं, विच इज़ बेसिकली कि जी डिफरेंसेस क्या हैं आर्काई और बैक्टीरिया में। आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू अर्लियर, सो अब ये वाला टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस इन मेमोराइजिंग ऑल ऑफ दिस। द फर्स्ट थिंग इज कि मैनी यूनिक टू बैक्टीरिया, मतलब थिंग्स दैट आर ओनली एग्जिस्टिंग इन बैक्टीरिया, लेकिन आर्काई में हमारे पास वी हैव मैचिंग यूकैरिया, एंड द रीजन फॉर दैट इज प्रीटी सिंपल, बिकॉज आर्काई एंड यूकैरिया are more closely linked than archaea and bacteria, or eukaryotes or bacteria. RNA polymerase यहाँ पर हमारे पास we have it very small and simple, ठीक है। On the other hand, archaea में हमारे पास it's complex, and do you know what else has complex polymerases, RNA polymerases? Eukarya, ठीक है। तो this resembles eukarya, and again same reason, evolutionarily they're closer together. यहाँ पे हमारे पास एंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, बट ओवर हियर इन सम जीन्स वी डू हैव, तो आई जस्ट राइट इन सम जीन्स वी डू हैव दीज थिंग्स, ठीक है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, यहाँ पे इट्स इनहिबिटेड और यहाँ पे इट इज अनइनहिबिटेड, मतलब इट्स प्रेजेंट, ठीक है, अनइनहिबिटेड। ओके, मूविंग ऑन, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, आर्काई में नहीं होती। देख रहे हो, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इट्स नो रॉकेट साइंस, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड्स में यहाँ पे जो कार्बन चेन्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, कार्बन चेन्स अनब्रांच्ड, और यहाँ पे द कार्बन चेन्स आर ब्रांच्ड, ठीक है। मतलब जो हमारे पास फाइटेनल साइड चेन्स लगी हुई हैं वो सारी ब्रांच्ड हैं, कार्बन चेन्स आर ब्रांच्ड। आई नो थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन रिलैक्स, वी आर डूइंग इट टुगेदर, ठीक है। ओके गाइस, सो अब हमारे सिलेबस में ना कुछ आर्काई के टाइप्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं, ठीक है, लाइक क्लासेस हैं कुछ, ठीक है। अब जस्ट रिमेंबर कि आर्काई दे लिव इन रियली एक्सट्रीम प्लेसेस, सो लेट्स टॉक अबाउट मिथेनोजेंस, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मिथेनोजेंस, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास, एंड यू डू नीड टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमारे पास होता है मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मीसियम, ठीक है, और ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एनारोबिक प्लेसेस के अंदर, ठीक है। सो जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन उतना मौजूद नहीं होता, एनारोबिक प्लेसेस, फॉर एग्जांपल वी हैव मार्शेस, वी हैव बैडलैंड्स, ठीक है, स्वम्प्स हो गए, एंड ऑल्सो इंटेस्टाइन्स। दिस इज व्हाट मेक्स द मीथेन गैस। अच्छा, एक ये होगी हमारे पास। अच्छा, एंड जस्ट रिमेंबर द वे इट मेक्स मीथेन, सो इट एसेंशियली यूजेस H2 प्लस CO2, ठीक है, प्लस ATP, ठीक है। I don't know if I should go into this amount of detail, just ऐसे करो बस, just know कि this is what it uses, ठीक है, this is the reactants, ठीक है। I feel like that will be too much biochem detail, okay। अब हेलोफिल्स पे चलते हैं, ठीक है। हेलोफिल्स हमारे पास हेलोफिल्स, ठीक है, दे आर जस्ट सॉल्ट लवर्स, ठीक है, दे लव सॉल्ट, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल होता है हेलोबैक्टीरियम, एक सेकेंड, द एग्जाम्पल इज हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, ठीक है।
और इसकी साइट, it's a salt lover, it's going to be in areas of high salt concentration, for example salted meat and fish. जैसे हम लोग पहले on long sea voyages we would salt meat or fish to take it with us, तो ये वहाँ पे present होता था, salted meat plus salted fish, ठीक है. But उसके साथ साथ it's also present, okay, and just remember, this is something that's in your book, so I just thought it might be important for you guys to know कि जो halophils होते हैं they're present, ये जो हमने इन चीज़ों को salt किया होता है ना, that is to prevent bacteria to grow, prevent bacterial growth. तो do you guys notice ये क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया तो अब नहीं ग्रो कर रहा, लेकिन अब हेलोफिल वहाँ पर आकर, बिकॉज इट्स अ सॉल्ट लवर, वो वहाँ पर आकर हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम ग्रो करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, लेट्स से वहाँ पे स्टैफिलोकोकस ऑरियस नहीं ग्रो कर रहा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नहीं ग्रो कर रहा, विच इज़ रियली कॉमन बैक्टीरिया दैट ग्रो इन स्लैश नियर फूड. ठीक है, तो अब वो नहीं ग्रो करे, लेकिन हमारा हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम ज़रूर आ गया. ठीक है, अच्छा, अब लास्ट चीज़ पे चलते हैं, विच इज़ थर्मो एसिडोफाइल्स. ठीक है, ये हमारे पास हीट प्लस एसिड लवर्स होते हैं. ठीक है, तो द रियली एक्सट्रीम हीट प्लस एसिड लवर्स. ठीक है, तो ये वाले हमारे पास द एग्जाम्पल इज पायरोलोबस फुमारी. एक सेकेंड, सॉरी माई बैड, इट्स फुमारी. ओके, अच्छा, ये होते कहाँ पर है? दे आर प्रेजेंट इन वॉल्केनोज, दे आर प्रेजेंट इन गीजर्स, दे आर प्रेजेंट इन स्टीम वेंट्स. ठीक है, मतलब स्टीम वेंट्स में ये मिलेंगे, और लास्टली सबमरीन थर्मल वेंट्स. ठीक है, तो यू गाइस कैन सी हाउ एक्सट्रीम दीज आर. ओके गाइस, so now we've covered archaea. This is all that there is present in domain Archaeobacteria. We'll be moving on with videos on bacteria now, and just keep this thing in mind that if they ever give you a question about an organism, ठीक है, जो कि हमारे पास is related more similar to eukarya compared to bacteria, and it lives in extreme places, it does not do photosynthesis, but it makes its own food, it can create methane gas, just know it's always going to be an Archaeobacteria. ठीक है, that's all that there is. This is a really, again, short topic, not very important, but it's really easy, so you should cover it in detail.